Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Pat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about amplitude modulation and we did mathematical analysis of amplitude modulation. We derived mathematical expression of the amplitude modulation and we also discussed the effect of one parameter, that is modulation index, in amplitude modulation. So modulation index is basically a measure of amount of modulation. मतलब जो मॉड्यूलेशन हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो कितने, मतलब उसका मेजरमेंट जो हम करते हैं वो पैरामीटर जो है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स. और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के हमने 3 स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे. इफ वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1 देन इट इज नोन एज अ परफेक्ट मॉड्यूलेशन and basically the value of m depends on peak amplitude of modulating signal and peak amplitude of carrier signal, that we have discussed. Second case, that is value of m is greater than 1, that is basically known as a over modulation, and when over modulation occur then it results in the distortion of the information. Okay, मतलब आपकी जो information है modulated signal में वो कुछ point पे distort हो जाएगी. So we always prefer that the value of m should always below 1 or equal to 1. Okay, and the third case, that is the value of m is between 0 and 1, मतलब it is greater than 0 and less than 1, that is basically known as a under modulation. So the value of m should always lies between 0 and 1, it should not exceed 1. Okay, if it exceeds 1 then it ultimately results in loss of information. Now today we will do the frequency domain analysis of this amplitude modulation process. तो बच्चों, हमने अब तक जो देखा वो टाइम डोमेन एनालिसिस था. मतलब जो भी हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया मैथमेटिकली या ग्राफिकली, वो टाइम डोमेन एनालिसिस था. मतलब वी आर रिप्रेजेंटिंग द सिग्नल लाइक दिस, दैट इज x of t, मतलब द सिग्नल इज फंक्शन ऑफ टाइम. बेसिकली सिग्नल इज फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, आज हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे. मीन्स वी विल फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. We will find the, or we will derive the frequency spectrum of amplitude modulated signal. So let's start. So as we know, in time domain the standard expression of amplitude modulated wave is given as v am of t. This is a time domain representation, as you can see, is equal to ec or ec 1 plus m sin 2 pi fm t into sin 2 pi fc t. Let me write it. V am of t is equal to EC, that is a peak amplitude of the carrier signal, 1 plus m, that is a modulation index, sin 2 pi fmt, which is nothing but it is the modulating signal. Sin 2 pi fmt is the modulating signal, into sin 2 pi fct, sin 2 pi fct, which is nothing but it is the carrier signal basically. So we can see the amplitude of this carrier signal is changed according to modulating signal, that is the sin 2 pi fm t. Now हमें frequency spectrum derive करना है. मतलब we would like to do the frequency domain analysis of the same. So if I expand this equation, okay, तो हम ये equation को क्या करेंगे, जो standard formula है time domain representation AM का, वो इक्वेशन को हम थोड़ा एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स एक्सपांड इट. सो मल्टीप्लाई दिस EC sin 2 pi fct with inner terms. So what will happen, this if I multiply EC sin 2 pi fct with 1, then it is the EC sin 2 pi fct plus m EC sin 2 pi fmt into sin 2 pi fct. ओके, नाउ यहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको मुझे ये जो है sin 2 pi fmt sin 2 pi fct, उसको मुझे 2ss बनाना है. क्या बनाना है, 2ss. एज यू नो फ्रॉम योर मैथमेटिक्स, 2ss मतलब 2 sin.
तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है 2ss का, तो उसको मुझे ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस जो ये जो टर्म है MEC sin 2 पाई FMT इंटू साइन 2 पाई FCT, उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा MEC डिवाइडेड बाई 2, ओके, MEC डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 साइन 2 पाई FCT इंटू साइन 2 पाई FMT, साइन 2 पाई FM इंटू टी। ओके, तो ये क्या बन गया बच्चों 2 साइन, और 2 साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, देयर इज अ कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। सपोज 2, इट इज अ फॉर्म ऑफ 2 साइन A इंटू साइन बी। ये कौन से फॉर्म में आ गया ट्रिग्नोमेट्री के, 2 साइन A इंटू साइन बी। आप देख सकते हो 2 साइन A इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 साइन A इंटू साइन बी क्या होता है, देयर इज अ कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। सिंपल। यहाँ पे A की जगह पे क्या है बच्चों, देयर इज 2 पाई FCT है, और B की जगह पे क्या है 2 पाई FMT। तो A की जगह पे 2 पाई FCT लगो तो क्या हो जाएगा, ये cos MEC बाई 2 एज इट इज, cos 2 पाई A की जगह पे FCT, तो ये 2 पाई FC माइनस B की जगह पे 2 पाई FMT, दैट इज 2 पाई FMD, और उसमें से 2 पाई T कॉमन ले लिया तो क्या बचा FC माइनस FM माइनस MEC बाई 2 एज इट इज, और दूसरा टर्म कौन सा है cos A प्लस B, तो cos 2 पाई A मतलब 2 पाई FCT, B मतलब 2 पाई FMT, तो दैट इज 2 पाई FC प्लस FM इंटू टी। ओके, तो अल्टीमेटली हमें एक्सप्रेशन क्या मिला आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, what we got finally, that is our modulated signal is nothing but it is the EC sin 2 pi FCT plus MEC by 2 cos 2 pi FC minus FM into T minus MEC by 2 cos 2 pi FC plus FM into T। अगर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखो, अगर हम डिटेल से उसको स्टडी करने की कोशिश करें, तो ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला है आफ्टर एक्सपांशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। टोटल ये एक्सप्रेशन में कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, 3। कौन सा है FC, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है FC, दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी है FC माइनस FM, और तीसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी है FC प्लस FM। सो if I look at this expression of the standard amplitude modulated wave, then it consists of 3 frequency component. One is the carrier frequency FC, another is the frequency FC minus FM, third is the frequency FC plus FM। मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टैंडर्ड AM है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, और 3 कंपोनेंट होते हैं। एक FC क्या ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी है, FC माइनस FM, that is nothing but it is the difference of the carrier frequency and modulated signal frequency, FC plus FM, that is the sum of the carrier and modulating signal frequency। तो अगर मुझे आप देख सकते हैं कि 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं, पहला FC है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है EC, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FC इज EC। दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है FC माइनस FM, उसका एम्पलीट्यूड कितना है MEC बाई 2। तीसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है FC प्लस FM, और इसका एम्पलीट्यूड भी कितना है MEC बाई 2। मतलब यह हो बच्चों कि हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। लेट मी ड्रॉ दिस, रिप्रेजेंट ऑल दिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बाय वन फिगर। ओके, मैं तीनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करता हूं, मतलब ये तीनों कंपोनेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी वर्सेस उसका एम्पलीट्यूड, उसका ग्राफ बनाता हूं। तो आप देख सकते हो पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी है FC, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी FC हो गई, और FC का एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज EC, एम्पलीट्यूड कितना है EC, तो दिस इज माय एम्पलीट्यूड EC, उस फ्रीक्वेंसी इज FC। नाउ दूसरा कंपोनेंट कौन सा है बच्चों, FC प्लस FM, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो वो कहां पे आएगी, राइट साइड आएगी, FC के लेफ्ट साइड राइट साइड आएगी, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है FC प्लस FM, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी FC प्लस FM, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है
MEC/2। तो ये प्लॉट कर दिया, MEC/2 इसका एम्पलीट्यूड है और इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी, FC प्लस FM। तो ये कंपोनेंट हो गया। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, फ्रीक्वेंसी FC माइनस FM और एम्पलीट्यूड MEC/2। तो फ्रीक्वेंसी FC माइनस FM मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, ये कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उसको मैं लेफ्ट साइड दिखा रहा हूँ, FC माइनस FM, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, MEC/2। मतलब बच्चों ये हुआ कि हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, तो उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो उसमें 3 कंपोनेंट है। एक एट फ्रीक्वेंसी FC जिसका एम्पलीट्यूड EC है, और ये कंपोनेंट को हम बोलते हैं अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। ये क्या है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, बिकॉज ये तो ओरिजिनल कैरियर सिग्नल है। यस और नो? अगर आप याद करो कि ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, ओरिजिनल कैरियर सिग्नल कौन सा था, EC कौन सा था, cos 2πfct। ये मेरा ओरिजिनल कैरियर था और वही कैरियर यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक कंपोनेंट ओरिजिनल कैरियर भी होता है, ओके। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, एट द फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, MEC/2। और इसको हम बोलते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी पे जो कंपोनेंट है FC प्लस FM पे, उसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अपर साइड बैंड, इसको हम अपर साइड बैंड बोलते हैं, ओके। और दूसरा जो कंपोनेंट है लोअर फ्रीक्वेंसी FC माइनस FM और जिसका एम्पलीट्यूड MEC/2, इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। क्या बोलते हैं, लोअर। सो दिस इज नोन एज अ लोअर साइड बैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली अवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कंसिस्ट ऑफ 2 साइड बैंड। उसमें 2 साइड बैंड है, वन इज द अपर साइड बैंड, अनदर इज द लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, FC प्लस FM। लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, FC माइनस FM। और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, MEC/2 MEC/2। एंड एक तीसरा कंपोनेंट एट कैरियर फ्रीक्वेंसी FC जिसका एम्पलीट्यूड EC है। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कंसिस्ट ऑफ 2 साइड बैंड्स, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, एंड 1 ओरिजिनल कैरियर। ये ओरिजिनल कैरियर ही है, हमारा जो ओरिजिनल कैरियर था इनपुट, वही ओरिजिनल कैरियर भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में प्रेजेंट है। समझ में आ गया बच्चों, ओके। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 साइड बैंड है और एक कैरियर भी प्रेजेंट है, तो इसको हम फेमसली उसको बोलते हैं DSB-FC। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव है उसको DSB-FC भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, DSB-FC। DSB-FC का मतलब D स्टैंड्स फॉर डबल, D स्टैंड्स फॉर डबल। यहाँ पे कितने साइड बैंड है, डबल। तो DSB मतलब डबल साइड बैंड, S स्टैंड्स फॉर साइड बैंड, SB स्टैंड्स फॉर साइड बैंड, एंड FC स्टैंड्स फॉर फुल कैरियर, फुल कैरियर। मतलब इसमें कैरियर भी प्रेजेंट है फुल और 2 साइड बैंड है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज अ डबल साइड बैंड फुल कैरियर, DSB-FC, जिसमें 2 साइड बैंड है और एक फुल कैरियर भी है। साइड बैंड कौन कौन से है, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, FC प्लस FM। लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, FC माइनस FM। और दोनों का एम्पलीट्यूड भी हमें पता है, MEC/2। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स M। It means modulation index M determines the amplitude of side bands, upper side bands and lower side bands. समझ में आ गया, डन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ये याद रखना है, DSB-FC डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ओके। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब हमने उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट किया, दिस इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ AM। ये जो प्लॉट किया उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ AM, दिस इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, स्पेक्ट्रम ऑफ AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो स्पेक्ट्रम आपको ये तीनों कंपोनेंट दिखाने हैं, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड और वोल्टेज, डन, ओके। नाउ सो you can see this is another way of representation of the same thing, that is a frequency spectrum। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास कैरियर है एट फ्रीक्वेंसी FC,
FC प्लस FM पे क्या है, अपर साइड फ्रीक्वेंसी और अपर साइड बैंड, और FC माइनस FM पे क्या है, लोअर साइड बैंड और लोअर साइड फ्रीक्वेंसी. सो दिस आर अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द AM वेव, नथिंग एल्स. ओके, सो आप देख सकते हो कि AM सिग्नल जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है, तो इट्स रेंज फ्रॉम FC माइनस FM टू FC प्लस FM. मतलब उसकी पूरी रेंज जो है फ्रीक्वेंसी रेंज वो कौन सी है, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है, FC माइनस FM. लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, FC माइनस FM. और अपर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हायर फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM. सो द स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव is range from FC minus FM to FC plus FM. Very important. समझ में आ गया? Yes or no? Good. Okay. So again the AM spectrum range from FC minus FM to FC plus FM. Okay. And what are the parameters of the spectrum? It has the lower side band whose frequency between lower side में frequency किसके बीच में है, FC से लेके FC माइनस FM तक लोअर साइड फ्रीक्वेंसी है. ओके, और लोअर साइड फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये बैंड है, पूरा बैंड है. ओके, लोअर साइड बैंड है. ओके, और लोअर साइड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एनी फ्रीक्वेंसी विद इन दिस LSB दैट इज नोन एज अ लोअर फ्रीक्वेंसी. ये लोअर साइड बैंड में कोई भी फ्रीक्वेंसी है उसको लोअर साइड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. अपर साइड बैंड कहाँ से कहाँ रेंज है, FC से लेके FC प्लस FM. So upper side band is the band of frequency between FC and FC plus FM, and upper side frequency कौन सी है, any frequency within this band. FC से लेके FC plus FM में कोई भी फ्रीक्वेंसी पकड़ लो तो उसको हम क्या बोलेंगे, upper side band frequency. upper side band frequency. समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड. अब वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू कंप्यूट बैंडविड्थ ऑक्यूपाइड बाय AM सिग्नल. मतलब ये जो AM सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ कितनी है, AM सिग्नल जो मैंने प्लॉट किया उसकी बैंडविड्थ कितनी है. तो बैंडविड्थ ऑक्यूपाइड और बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल. तो बैंडविड्थ क्या होता है, अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पता है और फ्रीक्वेंसी रेंज पता है और उसको आपको बैंडविड्थ कंप्यूट करनी है तो सिंपल फॉर्मूला है. बैंडविड्थ क्या होता है, क्या होता है बैंडविड्थ, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, मतलब अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे अपर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी, FC प्लस FM. उसको लोअर फ्रीक्वेंसी से, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी. सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब ये रेंज जो है फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उसमें अपर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, FC प्लस FM. लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी, FC माइनस FM. तो ये क्या हो जाएगा, bandwidth of AM is equal to upper frequency that is FC plus FM. अपर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी दैट इज FC माइनस FM. ओके, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा. ओके, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये FC प्लस FM होगा यहाँ पे पहला टर्म, और ये माइनस को अंदर ब्रैकेट ओपन करते तो क्या हो जाएगा, माइनस FC प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस दैट इज प्लस FM. FC कैंसल, एंड व्हाट इज द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ AM इज इक्वल टू ट्वाइस FM. मतलब कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस FM. व्हाट इज FM, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. बेसिकली इट इज नोन एज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड इट इज डिनोटेड FM मैक्स. ओके, इसमें यहाँ पे डिनोट किया FM मैक्स. ओके, आप FM लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल. तो अगर कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है और आपको पूछा है कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बैंडविड्थ कितनी है, हाउ मच बैंडविड्थ दिस AM ऑक्यूपाइज. ओके, तो अगर आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता है तो आप इजीली उसको कंप्यूट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, लेट से कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है और उसमें जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज FM इज इक्वल टू 5 किलोहर्ट्ज है. फॉर एग्जांपल FM इज इक्वल टू 5 किलोहर्ट्ज है, तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी बच्चों, दैट इज 10 किलोहर्ट्ज, 2 टाइम्स FM. तो बैंडविड्थ ऑफ AM इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, समझ में आ गया. तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम समझ में आ गया.
यस और नो? तो सिंपल है बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिराइव करना बहुत ईजी है। सिंपली आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, उसको एक्सपांड करो और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अप्लाई करके आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। एक तो ओरिजिनल कैरियर सिग्नल होगा आपका एट फ्रीक्वेंसी एफसी, दूसरा एक कंपोनेंट मिलेगा एट द फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस एफएम, जिसको हम अपर साइड बैंड बोलेंगे और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा MEC/2। तीसरा कंपोनेंट मिलेगा एट द फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस एफसी माइनस एफएम, उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर साइड बैंड बोलेंगे और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, MEC/2। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल इज 2 times मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। और एक और चीज यहाँ पे नोट डाउन करो कि दोनों साइड बैंड जो है, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, दोनों का एम्पलीट्यूड और वोल्टेज लेवल सेम है, दैट इज MEC/2 एंड दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, समझ में आ गया? सो बैंडविड्थ ऑफ AM इज नथिंग बट 2 times मैक्सिमम और हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ओके, डन। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। सो लेट्स स्टॉप हियर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस AM इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।